Hello students, we are back with another lecture in the series of basic lectures, and I hope you have watched the first two lectures. Now today we'll take up topic of factors and multiples, because when you go ahead, this HCF LCM is part of common syllabus, you can say, almost everywhere. So we need to understand the factors, multiples, to tackle complicated problems of HCF and LCM. So let's go ahead, and today we'll be discussing our basic lecture 3 on factors and multiples. So what I want you to teach is, when you read something in a book, read it very nicely. Don't read it casually. Every word has a meaning. So उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना? तो मैथ्स कहीं भी डिफिकल्ट नहीं है, अपना पढ़ने का तरीका चेंज करो and you will enjoy. We'll keep having those lectures. We'll also have special classes for calculation, right from addition, subtraction, multiplication. So all these tools which are used, right? So here, first we'll discuss some sum and product cases. Now just think, if I tell you I have added two numbers and their sum is even. So what I have given you the information that sum is even. What can you tell about the two numbers? क्या हो सकते हैं वो दो numbers? Now, when I add two numbers, both the numbers are even. तो आप example लो, एक 2 लो, एक 4 लो, corroborate करने के लिए थोड़ा सा सोचो. 2 plus 4 6 होता है, तो even आ रहा है. 4 plus 8 even आ रहा है. तो बात ठीक है कि both the numbers are even. But is this the only possibility? odd numbers में कुछ हो सकता है? एग्जाम्पल लेके देखो, 1 और एक 2, तो 3 आ गया, तो बात बनी नहीं. 1 and 3, 4 आ गया. तो when you add up both numbers which are odd, you will get even numbers. So now this concept or information you can use while solving HCF LCM questions, right? So that is what we need to know, that if both numbers are even or odd, then their sum is even, right? So that is the information. Now what about the sum odd? जब ये दो केस निकल ही गए, तो अब सम ऑड कैसे आएगा? दोनों ऑड तो हो नहीं सकते, दोनों इवन हो नहीं सकते, तो क्या होगा? वन नंबर इज ऑड एंड वन नंबर इज इवन. दो simple things, but you need to spend time thinking about them, and that is where you eliminate choices. ये सब कॉन्सेप्ट आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे choices. Now product is even. Let's go to even. What is the story? So if both numbers are even, the product is even. अब करके देखो, 2 and 4 works, 4 and 8 works. So this case is true over here. तो मतलब जो sum even था ये. But if both are odd, what will happen? 1 and 3. तो 1 into 3 क्या होता है? Odd होता है. यहाँ तो गड़बड़ हो गई. तो 1 odd और 1 even करके देखते हैं. 1 and 8, 2 and 3. So one number is even and other odd. आपको confusion हो जाए कभी, तो you can always take up cases and see. और एक केस ट्रू होता है नंबर्स में, इसमें तो वो सारे के लिए ट्रू है. मतलब अगर कोई भी दो पेयर लो और तुम ट्राई कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे हम. एंड फाइनली द प्रोडक्ट ऑड, बोथ नंबर्स आर ऑड. सो यू कैन सी बोथ ऑड यहाँ सम में था, यहाँ बोथ ऑड प्रोडक्ट में. ये चेंज है. दिस केस इज कॉमन, दिस केस इज कॉमन. तो प्रोडक्ट इवन है, तो बोथ आर इवन विल बी ट्रू. Now this is something which you need to use जब आप आगे HCF LCM करेंगे. दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एक रिजल्ट होता है जो वहां पे हम पढ़ेंगे. So that is what this concept would help you in knowing. So you will be studying polynomials, वहां बहुत यूजफुल होगा जब हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं. So this is very important. So see, unique case, product odd. So if someone tells me that simple case product is 27
then very sure I'll not look for any even numbers. I'm very sure the possibility is 1 in 27, 3 and 9. By doing some factors of 27, I can see that these are the cases. So इससे क्या होता है? I can zero down, I can eliminate choices, and that is what you need to start thinking. क्योंकि quadratic equation and polynomials, they do have this concept, and students don't apply this. So you need to be very thorough कि अगर दोनों numbers odd दे दिए हैं तो हम ये कह सकते हैं. And going little further, now sum is positive. So obviously both are positive. एक केस तो ये आ ही गया कि दोनों पॉजिटिव है. One negative and other positive, and this value is bigger than this. Then obviously if you add up 8 with -3, you'll get 5, which is positive number. So that is this. Now what you can say is sum is negative. So both negative है कि नहीं? देखो, this is what you go ahead with your thinking process. यहां से हम इसको इधर भी ले जा सकते. One negative, ये one negative and other positive, and this is bigger. This is bigger, जैसे ये bigger था तब ये हो सकता है. Now same way, now try to think, थोड़ा सा open up करो. प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, सो बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी विल हैव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव. एंड लाइकवाइज इफ आई वेर टू टेल यू दैट प्रोडक्ट इज नेगेटिव दो नंबर्स का, सो देन वी हैव ओनली वन केस. इसमें हमको और ज्यादा जाना है. One positive and other negative. That is it. So that is what you develop your thinking and solving before it. So if similarly, if someone were to tell me about a by b greater than 0, now see, greater than 0, a ratio greater than 0. अब सोचिए दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और आउटकम पॉजिटिव आया है, तो क्या मतलब होगा? वही होगा जो ये हुआ था, क्योंकि a by b is in a way product of a into 1 by b. तो कोई डिफरेंट केस नहीं है, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. एंड लाइकवाइज इफ a by b is less than 0, it is understood one positive अदर नेगेटिव. तो इनमें से एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव. सो दिस इज व्हाट यू इंट्यूटिवली स्टार्ट डेवलपिंग, देन यू विल एंजॉय. आप नंबर्स लो और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि यस. अब जैसे हम कहते हैं रेशियो ग्रेटर देन 1 दो नंबर्स का, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, बहुत ऑब्वियस है, तभी तो रेशियो 1 आएगा, अदरवाइज वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब द रेशियो इज लेस देन 1, राइट? सो दिस इज हाउ the concept which you will develop here, we will be using it. Now let's move on to factors and multiples, which you have been studying from lower classes. See the error you will make now when we discuss this concept. Now what is a factor? It's basically a number, factors of a number. किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर ढूंढते हैं, भाई ये मेरा दोस्त है, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है ना? तो एक आदमी है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर है जिसके बाकी दोस्त हैं, तो आर द नंबर्स दैट डिवाइड इट एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर. तो यहाँ पे यही बोल दिया जाता है कि फैक्टर बेसिकली अगर कोई किसी का है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. एग्जाम्पल, फैक्टर्स ऑफ 12. तो 12 को जो नंबर डिवाइड कर देगा कंप्लीटली वो उसका फैक्टर है. सो ऑब्वियसली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है. एंड यू हैव स्टडीड मे बी इन लोअर क्लासेस हाउ डू यू फाइंड फैक्टर्स, ठीक है ना? तो 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होगा ही होगा, है ना? एंड अदर्स हम निकालते हैं. तो इससे हम ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फैक्टर की वो नंबर ही आता है, मिनिमम 1 ही आता है, और बाकी उसके बीच में
और फैक्टर्स आते हैं, कुछ प्राइम होते हैं, कुछ कॉम्पोजिट होते हैं। चलो मैंने प्राइम का जिक्र कर ही दिया। नाउ इन माय 30 years of experience I have seen many students taking 1 as a prime number। बहुत लेते हैं, क्लास में 1000 बार बताओ, एग्जाम में 1 ले लेते, तो 1 प्राइम नहीं होता। लेकिन बच्चों से ये पूछ लो कि 1 प्राइम क्यों नहीं होता, तो कई जवाब नहीं दे पाते, दे आर नॉट एबल टू आंसर। सो व्हाट इज अ प्राइम नंबर? ए नंबर विच हैज फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात आ जाती है ना, विच हैज फैक्टर्स एज द नंबर एंड 1 ओनली। तो मतलब एक प्राइम नंबर के खाली 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। तो इसीलिए 4 कॉम्पोजिट क्यों होता है? क्योंकि 4 जो होता है उसका फैक्टर 1 भी होगा और 4 भी होगा और 2 भी हो गया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, और प्राइम में सबसे छोटा प्राइम एक ही नंबर होता है, इवन 2। फिर तो सारे ऑड हो जाते हैं, क्योंकि 2 सारे इवन नंबर का फैक्टर है। तो 1 प्राइम क्यों नहीं है? बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर एंड टू बी प्राइम इट मस्ट हैव 2 फैक्टर्स। तो इसीलिए 1 प्राइम नहीं होता। तो हम फैक्टर्स की बात करते हैं। अब यहीं पे आता है मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ होल नंबर्स, ठीक है ना। तो जैसे 5 है, तो 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 5 को हमने 1 से किया, 5 को हमने 2 से किया। सो यू विल कीप गेटिंग द आउटपुट एंड दिस आउटपुट्स विल बी द मल्टीपल्स। फैक्टर्स में क्या होता है कि जो आउटपुट या जो भी नंबर होते हैं वो उसको डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये सारे उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं, उसी से निकले हुए नंबर्स। सो की पॉइंट्स, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बोलो सर आप क्या बता रहे हो, तो हमें पता है। अब देखो आपने डेफिनेशन में कहाँ गलती की, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी बात सही है। ए नंबर हैज, यहां पे लिखा हुआ है देखो, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स बट इनफाइनाइट मल्टीपल्स। अब आजकल सीबीएसई में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक नंबर हैज फाइनाइट नंबर एंड दिस, तो ट्रू या फॉल्स। तो यहीं पे मैं आपको कैच दिखाऊंगा, अब ध्यान से सोचिए, और वीडियो पॉज करना है, पॉज करके सोचिए क्या ये दोनों बातें सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। हर बुक में ये लिखा होता है, आप जब देखेंगे, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो जिस भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर वही होता है मल्टीपल। द लार्जेस्ट फैक्टर, जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर इटसेल्फ। 12 के केस में यू सो दैट 12 वाज द हाईएस्ट फैक्टर, और मल्टीपल्स में ये कहा जा रहा है कि वो नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम यहां देखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन डेफिनेशंस के बाद जीरो के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए फैक्टर्स ऑफ जीरो ढूंढते हैं, मतलब जो भी नंबर जीरो को डिवाइड कर दे। तो जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने तो कहा था कि एक नंबर के फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, मतलब उस नंबर पे जाके रुक जाएंगे। अब जीरो तो शुरू और वहीं होता है खत्म, तो क्या हुआ, दिस मींस जीरो हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी वो जो केस था वो सबके लिए ट्रू है एक्सेप्ट जीरो। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे आके ये चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि जीरो के फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट फैक्टर्स, so which contradicts the general statement that a number has finite number of factors। तो आपको अब ये सोचना है, और हर किताब में ऐसा लिखा मिलेगा, वो इतनी बारीकी पे ध्यान नहीं देते, दैट इज यू हैव टू डेवलप मैथ्स, ठीक है। तो देखिए अब थियोरेटिकल नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये सब आप सोचना थोड़ा शुरू नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे नाइसली, देन व्हाट हैपेंस, यू गेट स्टक, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। सो ये तो फैक्टर्स की बात थी। अब उन्होंने कहा था इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, तो मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ होल नंबर्स। तो भाई द मल्टीपल्स ऑफ जीरो आर 0 into 1, 0 into 2 and so on। So this means zero has only one unique multiple and itself। So unlike others numbers which have an infinite set of multiples, जीरो का मल्टीपल तो जीरो ही होता है। तो अब इससे हमें समझ क्या आया, एंड जीरो का जो हम स्पेशल केस देखते हैं, जीरो तो हर नंबर का मल्टीपल होता है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो
5 into 0 is 0, so 0 would come as a multiple because when we multiply any number by that, so 0 in fact is multiple of every number, right? Now कॉमन फैक्टर्स, अब इसको समझना, अभी तो हमने फैक्टर्स समझे, कॉमन, कॉमन का वर्ड है जो दोनों में आ जाए, दैट इज सिंपल थिंग, यही सिंपल थिंग आगे आपका HCF LCM बनाती है। A factor of a number is a number that divides exactly without a living। अब इसमें एक चीज और बता दूं, कंफ्यूजन मत करना, कुछ बच्चों को होता है 5/2, सर 2.5 आ गया तो 5 का फैक्टर 2 होना चाहिए। अरे नहीं भैया, जो रिमाइंडर होता है वो 0 तो तुम ले आए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी फ्रैक्शन में आएगा। सो हियर व्हाट वी मीन, इट्स कंप्लीटली डिविजिबल एंड देयर आर नो डेसिमल पार्ट्स। नाउ the common factors of two or more numbers are the numbers that divide each of them exactly। now finding common factors, now here are the tricks you use। अगर यहां आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे अब टू और मोर नंबर्स का स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, आप लिस्ट करिए सबके फैक्टर्स, ठीक है जी, लिख दिया, फिर आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट अपीयर, भाई दो नंबर दिए, दोनों के फैक्टर्स लिखे, नंबर्स आइडेंटिफाई। नेक्स्ट कॉमन नंबर्स, देन आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट अपीयर, और उसके बाद जो कॉमन होंगे विच अपीयर इन बोथ, और नहीं बोथ, दे विल बी द कॉमन फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। अब 12 के फैक्टर्स तो ये हो ही गए, 18 में ये आएंगे। नाउ ऑब्वियसली बिगर नंबर है 18, अब यहां पे 12 एक छोटा नंबर है, तो जो फैक्टर्स कॉमन आएंगे वो 18 वालों में से तो सारे नहीं आएंगे, 12 के चांस है। तो हियर वी कैन क्लियरली सी दैट व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स विच वी सी। अगर मैं ऐसे ले जाऊं 1 2 3 6 एंड 1 2 3 6, 18 को तो आउटराइटली हम हटा देते हैं बिकॉज 18 कैन नॉट बी ए कॉमन फैक्टर, बड़ा नंबर कैन नॉट डिवाइड छोटा, तो वो तो एलिमिनेट होता है, ठीक है। बट हम और भी इनको सोचें कि हाउ फास्ट वी कैन डू इट, देन आवर HCF LCM वर्क विल बिकम इजी। तो एज वी गो थ्रू, ट्राई टू ऑब्जर्व what all we can do। so common factors here are 1 2 3 6, very easy। that's why I told you कि 2 raised to power 3 raised to power ये सब आपको याद रखने हैं, so that ये आता है। अब यहां पर दोनों नंबर ऑड है, तो यहां पर ये तो पक्का है कि कोई भी फैक्टर इवन नहीं आएगा, पर यहां दोनों इवन थे तो ऑड फैक्टर क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड इवन होता है, इसीलिए इवन फैक्टर कॉमन आ गया, ऑड फैक्टर एक कॉमन आ गया। पर यहां दोनों ऑड है तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, तो यहां 2 तो आएगा नहीं, फॉर श्योर है, और छोटे वाला मतलब 25 भी नहीं आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे 25 इज इग्नोर्ड, 15 के हमने फैक्टर्स कर लिए और ये ऑड ही आएंगे। सो क्लियरली 1 and 5 आर कॉमन फैक्टर्स। ये नॉर्मल मेथड चल रहा है विच वी आर डूइंग इट ग्रेजुअली। once your concept is there, we will try to see how fast we can solve them। now 1 is a common factor of all numbers, like 0 is a multiple of all। so if one number, अब यहां पे आपको थोड़ा सोचना है कि हम कैसे शॉर्ट करते हैं। अगर एक नंबर इज मल्टीपल ऑफ अनदर, देन ऑल द स्मॉलर नंबर्स फैक्टर्स आर कॉमन। अब जैसे हम 12 है, तो 12 के अगर हम मल्टीपल्स देखें, फॉर एग्जाम्पल 12, 24, 36, 48 and so on। so if we are to find common factors of say 12 and 48, what will we do? तो जो 12 के कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो बेसिकली दोनों के कॉमन होने चाहिए। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 8 6 48 आता है, 9 10 होगा नहीं, और 12 होगा, और कौन होगा, 24 होगा, और 48। क्लियरली 1 2 3 4 6 12 ये जो है यही कॉमन। तो फिर ऐसे में यू डोंट नीड टू फाइंड बोथ द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, हमें फिर दोनों निकालने की जरूरत नहीं होती। सो दैट इज व्हाट दिस मीन्स। सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू सी, इफ वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अदर या
नहीं, अगर है तो आप इजीली कर सकते हैं। इफ टू नंबर्स आर कंसेक्यूटिव, सोचना ही नहीं है, देन ओनली कॉमन फैक्टर इज 1। इफ नंबर इज प्राइम, एक नंबर प्राइम है, देन इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, उसको करके भी नहीं देखना। तो प्राइम नंबर आ जाए, कॉमन फैक्टर निकालना है, देन थिंग्स बिकम प्रिटी इजी। ठीक है, दिस फैक्ट्स एज वी गो अहेड and we take up chapters, we will be using this concepts. Now special cases, odd and even number है, अगर odd और even number है, अगर एक number odd है and other is even, their common factor cannot be even number। कहने का मतलब क्या है, अगर एक नंबर 52 है और मान लो एक 22 है, तो odd और even नंबर का कॉमन फैक्टर कभी भी even नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, so that is one thing। टू इवन नंबर्स हैं, will always have 2 as a common factor, 2 इसका कॉमन फैक्टर आएगा। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर, if a prime number does not divide the composite number, then their only common factor is 1। तो अगर एक नंबर प्राइम है और वो दूसरे कॉम्पोजिट नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ये बहुत ऑब्वियस है। अब मान लीजिए एक फैक्टर 7 है, अब ये 7 अगर 22 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। लेकिन यस, इफ इट डिवाइड्स देन वी गो अहेड एंड सी अदर थिंग्स। सो अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो अपने आप में तो एक कॉमन फैक्टर हो ही गया। अब हमको और एक्सप्लोर करना है नंबर्स के साथ कि क्या हम पॉसिबिलिटीज कम कर सकते हैं। देखो, जब प्राइम फैक्टर आ जाता है तो वी हैव टू सी एवरी नंबर्स व्हेन वी एक्सप्रेस एज फैक्टर्स, दे विल बी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हम अरिथमेटिक में थ्योरम पढ़ेंगे। तो जैसे 49 है या कोई भी नंबर है, 24 है, यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस देम एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है ना, तभी अब जैसे हम 24 की बात करते हैं तो यू मस्ट नो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, so you can easily write it like this। so that is the use कि जब prime होता है we can reduce our work, right? so what are the conclusion? Check for odd and even number. If one is odd and one is even, then common factor cannot include 2 or any even number। clear हो गया? consecutive numbers है, common factor 1। if one number is multiple of other, all factors of smaller are common, निकालने की जरूरत नहीं है। check for prime numbers, if one is prime and does not divide the other, common factor is 1। check for even numbers, the common factor must include 2। तो अगर मैं एक नंबर दे दूं और वो मैं बोलूं कि 7-8 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया है और ये नंबर से इवन है, तो इसका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। और अगर मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और मैं बोलूं कि 7 नंबर्स मल्टीप्लाई किए और ऑड आया है, उसका स्मॉलेस्ट इवन ऑड फैक्टर क्या होगा, तो 3 होगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक। अब आपसे ये पूछ लेगा कि 2 नंबर्स हैं, एक का स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर 3 है, ऑड फैक्टर 3 है, और एक का 5 है। समझे मेरी बात? सोचना थोड़ा। ए एक नंबर है, उसका ऑड फैक्टर स्मॉलेस्ट 3 है, और बी एक नंबर है, उसका स्मॉलेस्ट ऑड फैक्टर 5 है। अब मुझे नंबर्स नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके सम दोनों का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा। सोचिए थोड़ा। अगर स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 है तो पहला नंबर ऑड हो गया, हो ही गया, और दूसरे का स्मॉलेस्ट 5 है तो वो भी ऑड हो गया। तो यानी दोनों नंबर्स ऑड हैं, तो दोनों नंबर्स ऑड है, उनका सम क्या होगा, इवन। और अगर कोई चीज इवन बन गई तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, 2। नाउ थिंक ऑन दिस। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो कंपेयर ऑल नंबर्स, देयर कॉमन फैक्टर मस्ट डिवाइड ऑल नंबर्स इन द गिवन सेट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट। तो मैंने जो आपको बोला कि ए एक नंबर है, स्मॉलेस्ट फैक्टर 3, बी का स्मॉलेस्ट फैक्टर 5। सो कैन यू टेल मी ए प्लस बी का स्मॉलेस्ट फैक्टर? तो देखो कंक्लूजन। नाउ सिंस ए का स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 है तो वो ऑड ही नंबर हुआ, ठीक है ना।
और यहाँ पे स्मॉलेस्ट फैक्टर 5 है। क्यों हुआ? क्योंकि इवन नंबर होता तो मैं 2 से शुरू करता, तो 3 से शुरू कर रहा हूँ 5, तो यानी ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। तो ये अगर ऑड है और ये भी ऑड है, आज ही हमने पढ़ा ऑड प्लस ऑड क्या होगा? इवन होगा। तो यानी इनका सम इवन, द स्मॉलेस्ट फैक्टर a प्लस बी का विल बी even number and that is equal to 2, right? So we'll do such types of questions may application. My aim is to clear your basics so that you can apply your mind. This is Keshav Agarwal signing off. Next class we'll do divisibility rules जो कि बहुत important है, and then we'll go to fractions which is most important for calculations. So we'll take up that. Enjoy learning and we'll be back with more lectures. Thank you.